Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour nous, les Indiens. Le 15 août, notre fête de l'indépendance. Le 15 août 1947, l'Inde est devenue libre après plus de 200 ans de domination britannique. C'est un jour de fierté et de mémoire où nous honorons les sacrifices de milliers de personnes qui ont lutté pour notre liberté. Ce jour-là, le Premier ministre hisse le drapeau au Fort Rouge et adresse un discours à la nation. Dans tout le pays, les écoles, les bureaux et les communautés célèbrent avec des drapeaux, des chants patriotiques et parfois des lâchers de cerfs-volants. Mais savez-vous quelle est la différence entre le 15 août et le 26 janvier? Vous allez découvrir pourquoi elles sont différentes et pourtant tout aussi importantes. नमस्ते दोस्तों, आज हमारे लिए एक बहुत खास दिन है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई। ये दिन हमारे गर्व और सम्मान का प्रतीक है, जब हम उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। पूरे देश में स्कूल, दफ्तर और मोहल्ले झंडारोहण, देशभक्ति गीतम और पतंगबाजी के साथ जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है? जानेंगे कि ये दोनों दिन अलग क्यों हैं, लेकिन हमारे दिल में बराबर जगह रखते हैं। Commençons par le 15 août. Le 15 août 1947, l'Inde a obtenu son indépendance après plus de 2 siècles de domination britannique. Ce jour-là, notre Premier ministre Nehru a hissé le drapeau tricolore au Fort Rouge, à Delhi, marquant ainsi la naissance d'une nation libre. Pour la première fois, le drapeau a été tiré du bas vers le haut du mât, symbole de notre élévation vers la liberté. C'est pour cela que nous parlons de levée du drapeau, ou flag hoisting. Depuis, chaque année, nous faisons la levée du drapeau, nous chantons l'hymne national et nous rendons hommage à nos héros de l'indépendance. शुरुआत करते हैं 15 अगस्त से। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाई, लगभग 200 साल की गुलामी के बाद। इसी दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। पहली बार झंडा मस्तूल के निचले हिस्से से ऊपर की ओर खींचा गया, जो हमारी आज़ादी की ऊंचाई का प्रतीक था। इसी कारण हम इसे झंडारोहण या फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं। तब से हर साल इस दिन झंडारोहण, राष्ट्रगान और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। Et le 26 janvier? Eh bien, le 26 janvier 1950, notre constitution est entrée en vigueur et l'Inde est devenue une république souveraine. C'est pourquoi nous célébrons la journée de la République ce jour-là. La différence? Le 15 août, on hisse le drapeau, flag hoisting, car il part du bas du mât et monte vers le haut, symbole de notre accession à la liberté. En revanche, le 26 janvier, le drapeau est déjà fixé en haut du mât et plié. Le président de l'Inde tient simplement une corde pour le déployer, flag unfurling. Cela symbolise que nous sommes déjà libres et que nous montrons notre drapeau comme signe de fierté républicaine. अब आते हैं 26 जनवरी पर। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। इसलिए हम इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फर्क क्या है? 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर खींचकर फहराया जाता है, फ्लैग होइस्टिंग, जो आज़ादी की प्राप्ति का प्रतीक है। लेकिन 26 जनवरी को झंडा पहले से मस्तूल के ऊपर बंधा होता है और मोड़ा हुआ रहता है। राष्ट्रपति केवल रस्सी खींचकर उसे खोलते हैं, फ्लैग अनफर्लिंग। ये इस बात का प्रतीक है कि हम पहले से आज़ाद हैं और अपना तिरंगा गर्व से प्रदर्शित कर रहे हैं। 15 अगस्त भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश होता है, जिससे सभी नागरिक छोटे बड़े कार्यक्रमों और समारोहों में पूरी तरह भाग ले सकते हैं। दिन की शुरुआत नई दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराने से होती है। झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है और फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होता है। पूरे देश में स्कूल, सरकारी दफ्तर, निजी संस्थान और समुदाय झंडारोहण करते हैं। इसके साथ देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक नृत्य, स्वतंत्रता सेनानियों पर नाटक और खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और जगह जगह खुशी का माहौल होता है। कई इलाकों में रंग बिरंगी पतंगें आसमान में लहराती हैं। ये दिन भारतीयों के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव की तरह है, जब पूरा देश आज़ादी और एकता के जज्बे में एकजुट होकर जश्न मनाता है। En résumé,
Le 15 août célèbre notre liberté et le 26 janvier célèbre notre identité républicaine. 2 jours, 2 histoires, mais un même amour pour notre pays. Le 15 août nous rappelle le courage, les sacrifices et la lutte de nos ancêtres pour que nous puissions vivre libres. Le 26 janvier nous rappelle que cette liberté s'accompagne de responsabilités, de droits et de devoirs inscrits dans notre Constitution. Ensemble, ces 2 dates tissent le fil de notre histoire et nous rappellent que l'unité, le respect et l'engagement vers notre nation sont la véritable force de l'Inde. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. संक्षेप में 15 अगस्त हमारी आज़ादी का प्रतीक है और 26 जनवरी हमारी गणतांत्रिक पहचान का। 2 दिन, 2 कहानियां, लेकिन देश के लिए एक ही अटूट प्रेम। 15 अगस्त हमें हमारे पूर्वजों के साहस, बलिदान और संघर्ष की याद दिलाता है, जिसकी बदौलत हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि इस आज़ादी के साथ हमारे अधिकार और कर्तव्य भी जुड़े हैं, जिन्हें हमारी संविधान में दर्ज किया गया है। ये दोनों दिन मिलकर भारत की कहानी बुनते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि एकता, सम्मान और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही हमारी असली ताकत है। जय हिंद, भारत माता की जय।